ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کمشنر کراچی کی بیٹھک نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز اور کمشنر کراچی کے درمیان مذاکرات 2 گھنٹے تک جاری رہے۔ مذاکرات میں ڈی جی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ سمیت ٹرانسپورٹرز نے شرکت کی۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد تواب خان کے مطابق کمشنر کراچی نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد ہڑتال ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ تواب خان کا کہنا تھا کہ ای چالان، بھاری جرمانوں اور دیگر درپیش مسائل کے حوالے سے بھی انتظامیہ کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز ای چالان سسٹم، تھرڈ پارٹی انشورنس اور بھاری جرمانوں کے خلاف گزشتہ 4 روز سے ہڑتال پر تھے، جس کے باعث شہریوں کو شدید سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے سندھ میں حکومتی تبدیلی کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں سندھ میں بہترین وزیر اعلیٰ موجود ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار نہیں ہیں۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ افواہوں کی سیاست مسترد، سندھ حکومت نے وضاحت پیش کر دی۔ سندھ اسمبلی کے میڈیا کارنر پر گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 28ویں ترمیم کہاں ہے؟ NFC ایوارڈ کا تبادلہ کہاں ہے؟ سندھ میں اپوزیشن آپس میں گتھم گتھا ہے۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خبر جھوٹی ہے۔ مذکورہ چینل کے مالک اور اینکر کو خط لکھا ہے۔ مذکورہ خبر پر پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے۔ سندھ میں بہترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور نہ میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار ہوں۔ اس اپوزیشن کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپس میں ہی جو ہے گتھم گتھا ہیں، آپس میں ہی وہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس چلے۔ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں، یہ فیصلے پارٹی نے کرنے۔ ایک بہتر وزیر اعلیٰ آپ کے پاس موجود ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ جو پرفارمنس دے رہا ہے۔ آپ پاکستان کے 4 وزیر اعلیٰ کا چینج جب آتی ہے، جب آپ کچھ چیزیں آپ کی خراب ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی چیزیں دن بدن بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں، آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ BRT یلو لائن کا مقدمہ ایڈوانس ادائیگیوں کا ہے۔ مذکورہ افسر پر الزام ہے انہوں نے ایڈوانس ادائیگیاں کی ہیں۔ اس کیس کے بارے میں خود وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو بتایا۔ محکمے کی جانب سے مارچ میں خط لکھا گیا تھا۔ BRT ریڈ لائن لوٹ 1 پر اگست تک روڈ کلیئر ہو جائے گا۔ جتنا اس کو سپیڈ کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ ہم نے کہا 9 مہینے جو کیئر ٹیکر کی، تو اس میں ایک اینٹ نہیں رکھی، تب سب خاموش تھے، کسی نے نہیں دیکھا۔ روڈ کھدا ہوتا 9 مہینے تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، نہ اپوزیشن بول رہی تھی، نہ کوئی اور بول رہا تھا۔ تو اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن الحمدللہ نیک تھے اور ابھی ایک پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ فاروق ستار کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ایسی بیتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مشکلات کے باوجود کراچی میں کام کیا اور مزید کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کام جاری رہے گا۔ کراچی میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ بی بی شہید کی خدمات کو دنیا سلام پیش کرتی ہے۔ صوبے فاروق ستار صاحب کے بیانات کو میں اہمیت نہیں دیتا، اور وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے آپ لوگ بھی ان کی چیزوں کو سیریس نہ لیا کریں۔ پورے صوبے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی ہمارا دل ہے، اور کراچی کی دیگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں۔ اگر کراچی میں کسی نے کام کیا ہے، کام کروا رہے ہیں یا کام کرائیں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی جو ہدایات ہیں ان کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور اس دفعہ بھی اگر آپ پورے بجٹ میں دیکھیں تو جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو یہاں پہ پروجیکٹ آئیں گے، وہ جو ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، جو ظاہر ہے 2-3 سال میں پورے ہوں گے، تو 2000 ارب سے زیادہ کے فنڈز ہیں۔ اور اس دفعہ بھی جو ایلوکیشنز ہیں، جو جس میں کام ہو رہا ہے، وہ بھی کوئی 200-250 ارب کے قریب ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایلوکیشنز ہیں۔ جتنا جلدی کام ہوگا اتنے فنڈز دیے جائیں گے، اور کراچی میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور باقی صرف باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ صرف شور مچاتے ہیں۔
सिंध असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को तारीख का सुनहरी बाब करार दे दिया गया। सिंध असम्बली का बजट इजलास तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 76 अरकान ने खिताब किया। रुकन सिंध असम्बली के इंतकाल के बायस इजलास कल तक मुलतवी हो गया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन रिहाना लगारी की जेर सदारत सिंध असम्बली में तीसरे रोज भी अरकान ने बजट पर बहस को जारी रखा। मजीद 7 अरकान ने खिताब किया। पीपल्स पार्टी की शाहिना शेर अली, कासिम सिराज सोमरो, मुमताज चांडियो, फर्रुख शाह, बुरहान चांडियो और दीगर ने बजट को मुस्बत करार दिया। सीएम सिंध को अप्रिशिएट करूंगी, इस तरह मुश्किल हालात में ये बजट जो है वो बनाई गई है। इस बजट में कोई नई स्कीम नहीं है, जितनी पुरानी स्कीमें हैं उनको सबसे पहले जो है वो हमें कंप्लीट करना है। जॾहिं असांजी फेडरल में हुकूमत हुई, असां हमेशा पॉलिसीज़ उहे ॾिनियूं आहिनि जेके पीपल सेंट्रिक हुजनि। वेदर इट इज़ ए BISP प्रोग्राम, अॼु सिंध में सोशल सिक्योरिटी जो प्रोग्राम हुजे या सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम हुजे, जिते कंहिं एक्ट जी रिक्वायरमेंट हुई, जिते का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजिस जी अमेंडमेंट्स जी रिक्वायरमेंट हुई, असां उहे बि उन तरीक़े सां फुलफिल कयूं आहिनि। MKM के रुकन दानियल अहमद ने बजट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कराची को 15,000 बसों की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को 2,000 बसें दी हैं। 15,000 बसें सिर्फ कराची के अंदर चाहिए। आपने सूबे के अंदर 2,000 बस दे के आप कहते हैं कि जी बहुत बड़ा काम कर लिया। 2,000 की फिगर जब हम कोट करते हैं तो बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन भाई 15,000 चाहिए। जिस तरह पिंक स्कूटी आपने 0.04% ऑफ विमेन पॉपुलेशन बिटवीन 18 एंड 40 को आपने केटर किया है। इजलास में वजीर आला सिंध ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद पेश की, जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। This House pays glowing tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, former Prime Minister of Pakistan, daughter of the East, and the first woman elected Prime Minister of a Muslim country on the occasion of her 73rd birth anniversary being observed today on 21st June 2026. Born on 21st June 1953, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto dedicated her life to the service of the people of Pakistan and to the ideals of democracy, constitutional supremacy, social justice, federalism, women's empowerment and the rights of the marginalized. बजट इजलास के दौरान रुकन सिंध असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल की खबर आने पर इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पीपल्स चौरंगी पर दरख्तों की कटाई के मामले में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहरियों का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई दरख्त काटे गए, जिससे सरसब्ज़ो शादाब रहने वाली चौरंगी उजड़ कर रह गई। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। चौरंगी पर दरख्तों की कटाई, इलाका मकीन तशवीश का शिकार। सिटी 21 की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद का फौरी एक्शन। दरख्त काटने में मुबैना तौर पर मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेकर तैमूरिया थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुलविस अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जबकि पीपल्स चौरंगी को दोबारा सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए नई शजरकारी भी की जाएगी। जी, जैसे ही आपने ये खबर ब्रेक की तो DC साहब ने उसी वक्त डायरेक्शन दिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। तो पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है और हम भी यहाँ पहुँच गए हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और आपके तवस्सुत से इंशाल्लाह उनको जल्द से अरेस्ट करवाते हैं और उन पर सख्त FIR होगी। उसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह एक ही हफ्ते के अंदर सारे के सारे दरख्त नए लगाए जाएंगे। अब उनको तो हम वापस नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको करने के लिए हम एक दरख्त की जगह 10 दरख्त लगाएंगे और उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। जो कानूनी कार्रवाई होगी इमीडिएटली हम उसके लेके करेंगे। मकामी अफराद के मुताबिक मुख्तसर अरसे में मुतादिद तनावर दरख्त काट दिए गए, जिससे इलाके की खूबसूरती मुतासिर हुई और माहौलियात को भी नुकसान पहुँचा। पहले ये चौरंगी बहुत खूबसूरत और हरी भरी थी, अब इसका हुस्न खत्म कर दिया गया। जितनी इन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी ना, जो बड़े बड़े लकड़ियाँ थे, वो सारा इन्होंने ट्रक मंगाया, उस पर उन्होंने लोड किया। उसके बाद कहने लगे ये दरख्त भी काटो। ये आपके जाने के बाद इन्होंने ये दरख्त भी कटवाया है, ये वाला। शहरी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इलाके की खूबसूरती बहाल करने के लिए फौरी इकदाम भी किए जाएंगे। कैमरामैन अमजद अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत जहांगीर रोड की तामीर और मरम्मत का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर 2 किलोमीटर तवील सड़क पर दोनों इतराफ ट्रैफिक बहाल है। शहरियों का कहना है कि सड़क की तामीर से सफ़र का दौरानिया कम हुआ है। कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर रोड मंसूबा तकमील के करीब, शहरियों का इत्मीनान का इजहार। 2 किलोमीटर तवील जहांगीर रोड पर तामीर और मरम्मत का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की असरनो तामीर की गई, जहां पेवर ब्लॉक बिछाने के साथ सेवरेज और नकासियाब के मसाइल पर भी काम किया गया है। शहरी बोले, पहले यहाँ शदीद ट्रैफिक जैम रहता था, सफर घंटों पर मुहित हो गया था। अब सड़क बनने के बाद चंद मिनट में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो सवारी को दुश्वारी होती थी, सड़क बंद थी, तो इसलिए हर बंदे को परेशानी थी, पानी की यानी कि परेशानी थी। अब रोड बनने से काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो गई है। पहले बहुत ख़राब था, अभी सही चल रहा है। पहले ये जो था ना, तकरीबन ये इधर रोड बना ही नहीं था, ख़राब था, खड्डे थे इधर, अभी सही है। जहांगीर रोड का शुमार कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है। तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक रवा दवा है, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत हासिल हुई है। सड़क से मुंसलिक कारोबार में मसरूफ दुकानदारों का कहना था कि सड़क टूट फूट का शिकार थी, तो कारोबार भी मुतासिर था। अब सड़क बनने के बाद ग्राहकों की आमद बढ़ गई है और कारोबार में बेहतरी आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारा जो रोड बन गया, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। रोड बंदे जो जाते थे, सफ़र करते थे, उनको बहुत मुश्किलात होती थी, रोड में खड्डे होते थे। अभी रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले तो बहुत ख़राब थी और बड़े रश था इस रोड पे। हम तो बहुत दिनों से इसको रश को देखते हैं ना। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ये रोड बन गया और अभी रोड बन गया, अभी हमें भी तकलीफ नहीं है और आवाम को भी तकलीफ नहीं है। इलाका मकीनों और ताजिरों ने मंसूबे को खुश आइन करार देते हुए बाकी काम भी जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाजरीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। शाहराही लियाकत की तामीरात के बाद ग्रीन बेल्ट और फुटपाथों को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। शाहराही लियाकत के दरहम बरहम सीवरेज निज़ाम को भी दुरुस्त किया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कराची की तरक्की से पूरे पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुंदर में रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की वतन वापसी का अमल मुकम्मल कर दिया। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PMSA की ज़ेर निगरानी समुंदर से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी शहरियों की दस्तावेजी कार्रवाई, तिबी मुआयना और वतन वापसी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किए गए इस ऑपरेशन में वजारत खारजा, पाक बहरिया, FIA और ईरानी काउंसिल खाने ने भरपूर ताउन किया। PMSA के मुताबिक समुद्री इमदादी कार्रवाई कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के इश्तराक से कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई, जबकि रेस्क्यू किए गए तमाम ईरानी शहरियों को बाहिफाजत इनके वतन रवाना कर दिया गया। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम की याद में घरों, इमाम बारगाहों और अज़ाखानों में ख़ुसूसी झूले सजाए जाते हैं, जबकि मजालिस और जलूसों में इन झूलों की ज़ियारत भी कराई जाती है। अक़ीदतमंद इस रिवायत को अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करार देते हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। करबला के कमसिन शहीद की याद अक़ीदत के झूलों में जिंदा। 6 मुहर्रम शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत दिलों को अश्कबार कर देती है। 6 मुहर्रम झूलों की ये ज़ियारत सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि शहजादे अली अस्कर अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत और करबला के पैगाम से तशदीद अहद का इस्तिआरा है। माह मुहर्रमुल हराम के 6ठे रोज शहजादा हजरत अली अस्कर अलैहिस्सलाम की याद में खुसूसी झूले सजाने की रिवायत को अक़ीदतमंद बड़े एहतराम से निभाते हैं। अज़ादार शहजादा अली अस्कर की शहादत को याद करके नौहा खानी और जिक्र मसाइब में शरीक होते हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि झूले उन्हें अली अस्कर अलैहिस्सलाम की राह हक में जान कुर्बान करने की याद दिलाते हैं। सिफत यही है कि अली असगर अलैहिस्सलाम का वो झूला है कि जिससे इमाम की मदद की थी, और अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला इसलिए हम निकालते हैं कि ये वो झूला है कि जिसके अंदर अली असगर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रखते थे, सोते थे, तो हम इसलिए निकालते हैं कि ये वही झूला है। उसकी अक़ीदत के लिहाज से हम ये ज़ियारत बनाते हैं और
दुआएं कबूल करते हैं। और तमाम जलूसों की जीनत अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला है। अज़ादार कहते हैं कि हम हर साल 6 मुहर्रम को शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में ये झूले सजाते हैं। शहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में सजाए जाने वाले ये झूले वाक़या करबला के दर्दनाक बाप की याद भी दिलाते हैं, जिसने हक व बातिल की तारीख में हमेशा के लिए लासवाल मिसाल कायम कर दी। करबला के मैदान में शहीद होने वाले सबसे छोटे, सबसे कमसिन शहजादे अली असगर, जिनकी शहादत के वक्त सिर्फ उम्र 6 माह थी, और आज भी हर मजलिस, हर जुलूस के अंदर शहजादे अली असगर की याद में ये झूले निकाले जाते हैं, इनकी ज़ियारत की जाती है। और कोई मजलिस, कोई जुलूस ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर शहजादे अली असगर के नाम के झूले ना निकाले जाएँ। कहते हैं ना कि ए असगर तेरे हंसने से रोती है फ़ौज शाम, तुम तीर खा कर आए हो या तीर मार कर। कैमरामैन रिजवान के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। चावल के एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ज़राई शोबे के लिए मुख्तलिफ वसाइल खातिर ख्वाह नहीं हैं, जबकि चावल की बरामदात में इजाफे और किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इमारात में मज़ीद तोसी नागुज़ीर है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने टैक्स कमी को नाकाफी करार दे दिया। चावल के लिए 9% मराद मुकर्रर करने का मुतालबा। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन रफीक सुलेमान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1.25% किया गया। तमाम ज़राई शोबे और किसानों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इसमें मजीद कमी की ज़रूरत है। 2% बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। गवर्नमेंट ने आज 2 साल के बाद उसको समझने के बाद उसका 1.25% किया है। जी 1.25% किया है, 0.75% कम किया है। इसको और मजीद कम करना चाहिए था। एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जावेद जिलानी ने आलमी मार्केट में मुसाबकत बरकरार रखने के लिए DLTL स्कीम में तोसी को जरूरी करार देते हुए मुतालबा किया कि DLTL स्कीम में कम से कम 30 दिसंबर तक तोसी की जाए। ऐसे इक़दाम से नई फसल की आमद से कबल चावल के मौजूदा ज़खायर की बरामद मुमकिन हो सकेगी। मुनासिब हुकूमती पॉलिसियों और बरामदी मनात के तसलसल से पाकिस्तान की चावल की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। जब ये DLTA गवर्नमेंट ने हमको ये 23 जनवरी को ये चांस दिया कि यार अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो मुश्किलात हैं, तो एक मुश्किल वक्त था जब इंडिया के रेट बहुत डाउन थे, और उस मुश्किल वक्त में हमने 24 साल में आज तक कभी गवर्नमेंट से किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मांगा, ना कोई पैकेज मांगा है। ये फर्स्ट टाइम हमको लेना पड़ा। गवर्नमेंट की बहुत उन्होंने फौरन इस पे एक्शन लिया। चावलों की दरामद कुंदगान के मुताबिक मरात में तोसी और मौसर हुकूमती पॉलिसी के जरिए न सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, बल्कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमाया इजाफे को मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद के बायस लंदन इंडेक्स 6,522 पॉइंट्स बढ़कर 1,78,000 की सतह अबूर कर गया है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। शेयर बाजार में तेजी का तूफान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भरपूर कमबैक कर लिया। सरमायाकारों के चेहरे खिल उठे। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 6,522 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 3.8% इजाफे के साथ 1,78,922 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,82,185 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 1,75,085 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी के बायस एक हफ्ते में 325 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 73 करोड़ शेयर्स के सौदे तय पाए, जबकि मार्केट की मजमूई मालियत में 874 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 19,994 अरब रुपए तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन की जानिब पेशरफ्त ने आलमी मालियाती मंडियों के साथ पाकिस्तानी सरमायाकारों के एतमाद को भी तकवीत दी। फेडरल बजट जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली देखा गया, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट से एक्सपेक्टेड था वो भी अनचेंज आया गया, और साथ साथ आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के जो दरमियान जो मुआहदे की बात की गई, ये भी इसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो ओवरऑल ये हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के लिए और इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल मार्केट में 8,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ। ऑयल की बात कर लें तो ऑयल प्राइसेस भी तेज़ी से नीचे आए और $76 के पास ऑयल ट्रेड करता रहा। एशियन मार्केट में तेज़ी देखी, लेकिन हफ्ते के इख्तिताम पे एशियन मार्केट में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है। IPOs आ रहे हैं मार्केट
मार्केट में अगले हफ्ता याद रखने की जरूरत है कि रोल ओवर वीक है, सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 11.50% पर बरकरार रखने के फैसले को भी मार्केट ने मुस्बत अंदाज में लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, माशी अशारियों में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम और महंगाई की शरह में कमी के रुझान ने भी मार्केट के मुस्बत माहौल को मजीद मजबूत बनाया। माहिरीन के मुताबिक अगर माशी अशारिये मुस्बत रहे और बैरूनी महाज पर सूरत हाल साजगार रही तो आने वाले हफ्तों में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रह सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। मुंह का कैंसर खामोश कातिल करार। कोरंगी अलावाला टाउन में हुनर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुंह के कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने शहरियों, फैक्ट्री मुलाजमीन और मेहनत कशों को औरल कैंसर की वजूहात, अलामात और बचाव के तरीक़ों से मुतालिक आगाही फराहम की। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। नशा वक्ती सुकून मगर कैंसर मुस्तकिल अजाब, एहतियात अपनाएं, औरल कैंसर को जिंदगी से दूर भगाएं। कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में हुनर फाउंडेशन की जानिब से औरल कैंसर से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ मारूफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने शुरका को औरल कैंसर की वजूहात, खतरात और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसीली आगाही दी। साबिक सदर काटी जुनेद नकी ने इस सरगर्मी के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। इस वक्त के हमारे यहाँ ये जो गुटखा, मावा और दीगर इस तरह की जो चीज़ें लोग मुंह में रखते हैं और उसमें से आपने देखे यहाँ केसेस जिनको ट्रीट किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे फैक्ट्री से जो लोग बुलाए हुए हैं, ख़ास तौर पे लेबर के भी लोग हैं, आज उनका हेल्थ चेकअप भी हो रहा है इसी सेंटर में और उनको यह आगाही भी दी जा रही है। इस मौके पर शहरियों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन और मेहनत कशों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और मुशावरती सहूलत भी फराहम की गई। माहिरीन ने मुज़र सेहत अशिया खुसूसन गुटखा, मावा, छालिया और तंबाकू नोशी से इज्तिनाब की अहमियत पर जोर दिया। हमें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए और औरों को भी तजवीज़ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक खैर का मामला करे। एक अच्छा इवेंट है। मुंह में छोटा छाला भी हो, कुछ भी हो, तो आपने फ़ौरन मुआयने के लिए जाना है कि इसकी क्या वजह है। उसके अलावा ये है कि हम किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते कि मुंह की सफाई गंदा है तो छोड़ दो। हम जिस्मानी तौर पे तो सफाई कर लेते हैं लेकिन मुंह की सफाई नहीं करते। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके औरल कैंसर जैसे मर्ज से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। अवामी आगाही इस सिलसिले में निहायत अहम किरदार अदा करती है। शहर कायद में हब्स और गर्मी के बाद आवाम की बड़ी तादाद हॉक्स पे पहुंच गई है। टर्टल बीच पर संडे को फंडे बना लिया। बच्चे बड़े सब पानी में खूब एंजॉय करते दिखाई दिए। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। शहर कायद के मकीनों के एक बहुत बड़ी और सस्ती तफरी गाह साहिली पट्टी है, जिसमें हॉक्स बे, मनोड़ा, पैराडाइज पॉइंट, सैंडपेट और सीवियो क्लिफ्टन काबिले जिक्र हैं। छुट्टी के रोज जिस गर्मी में आवाम की पहली तरजीह समंदर की पिकनिक होती है, जहां आवाम फैमिली के हमरा पहुंचकर गर्मी से जान छुड़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटे से आए हुए हैं और जी नॉर्थ कराची से आए हैं और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी, गर्मी से बेजार हुए हुए थे। हॉक्स बे के टर्टल बीच पर आज आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। बच्चे बड़े सब पानी में खूब एंजॉय करते दिखाई दिए। शहरियों ने ऊंट और घोड़े पर सवारी के भी मजे लिए। हम लोग अंडा मोड़ से आए और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मेरे जैसे ही पेपर खत्म हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना सी साइड पे आया जाए। बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए बस एंजॉय करने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गए। साहिल पर इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए लाइफ गार्ड की सहूलत फराहम की हुई है, ताकि मनचले नौजवानों को समंदर पर आगे जाने से रोका जाए। जावेद इकबाल, सिटी 21।